to just ask to the honorable chairperson, can I use this space? Because it's a little difficult for me to constrain myself into this 2.2 by 2 dais. So I would like to request you to please allow me to use this. अच्छा जी, हाँ, सॉरी मेरी बात क्या चली थी? खाना खाया था आप लोगों ने? Yes sir. Feeling sleepy? ये तो सबसे बड़ा झूठ है आपका। Everyone is not feeling sleepy because I know everybody is feeling sleepy. चलो जी, बात शुरू करता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि your content should comply or your content should be student centric. So my content will be student centric and I'll make sure you keep on feeling sleepy throughout my lecture and eventually you will go to deep sleep till the end. ठीक है ना? So that is how my lecture will become student centric for you all. ठीक है? तो आज की बात जो मैं करने वाला हूँ, मैं बिल्कुल मुझसे बहुत लोग कहते थे कि यार बहुत ही ना स्किल की बात करते हैं, टॉक क्लिनिकल, यू टॉक a lot think about physiotherapy and skill and manual therapy and ये biomechanics. So today I am talking totally unconventional. आप लोगों ने नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसे भी कुछ बात करूँगा. So I will be talking totally unconventional. I will not be talking about what physiotherapy management you should give in a particular condition or not. I will not be talking anything about it. ठीक है? I will be talking about something different and relatively more practical approach. चलिए, तो हमारी बात करेंगे. Anybody here with that? Okay. So my topic आप लोगों ने देख लिया होगा business. So I'll be talking about your business. I'm not talking about anything management. I'm not talking about anything entrepreneurship. I'll not be talking about any theoretical approaches of it. I'll not be giving any pointers. I'll just be discussing my own experiences. जो मैंने देखा, जो मैंने फील किया, जो पिछले 5-6 साल से मैं जिससे गुजरता हुआ आ रहा हूँ, मैंने बस अपने एक्सपीरियंसेस को थोड़े से 10-15 मिनटों के अंदर कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश की है, उसको समराइज करने की कोशिश की है। तो आई वांट, क्योंकि मैं हमेशा इस बात में बिलीव करता हूँ कि नींद से जगाना बहुत जरूरी है लोगों को, तो आज मैं आज की नींद से भी जगाऊंगा और कई सालों से जो आप लोग नींद में हो वहां से भी जगाऊंगा, ठीक है ना? I want to be able to make the session interactive. Please raise your hands when I ask, and I'll be asking general questions. वैसे कोई UPSC की सवाल नहीं पूछने वाला हूँ आज, ठीक है ना? जनरल जो दिमाग में आता है क्लिक करता है, पहली बार बोल रहे हैं, ठीक है? हम बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी पापा अच्छे स्कूल में डालते हैं, ठीक है ना? बोलते हैं अच्छी पढ़ाई करो, पिटाई करते हैं, होमवर्क करो, ये करो, क्यों करते हैं? हम अच्छी स्कूल से पढ़ते हैं, अच्छे मतलब ग्रेड्स के लिए हमें पुश किया जाता है, 80% आना चाहिए, 90% आना चाहिए। क्या है इन सबका? हम अच्छी कॉलेज चूज करते हैं, अच्छा कोर्स चूज करते हैं, चेंज करते हैं, स्लाइड चेंज करते हैं। क्लिक वन। तो हम अच्छा कॉलेज चूज करते हैं, हम अच्छी स्कूल चूज करते हैं, अच्छा कोर्स चूज करते हैं। इंजीनियरिंग कराओ या नहीं, अब तो इंजीनियरिंग ऑब्सोलीट हो गया, मेडिकल कराओ। चलो फिजियोथेरेपी करा दो, मेडिकल नहीं हुआ तो बीच का मामला आ जाएगा, ठीक है ना? फिर नहीं यार, इसने ये तो हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है, यूपीएससी की तैयारी करेगा, आईएएस बनेगा। क्यों? व्हाई डू वी डू दैट? Can you give me an example? Can you give me an answer of that? हम क्यों अच्छी पढ़ाई करते हैं? हमें क्यों पुश किया जाता है अच्छी पढ़ाई करने के लिए? अल्टीमेट एम क्या है हमारा? क्या? स्टेबल फ्यूचर का मतलब 9 to 5 जॉब इज स्टेबल फ्यूचर? Yes. To get financial stability, पैसा, right? You all, we all, everybody in this whole world is studying hard, getting good grades, getting good colleges, getting good studies, getting good courses to ultimately earn money. But tell me, in this whole world, जितनी universities चल रही है, जितने courses चल रहे हैं, how many universities teach you how to earn money? They teach you how to do entrepreneurship. They teach you how to do business. They never teach you how to generate money. They won't teach you. So this is इतनी एजुकेशन पॉलिसीज आई, ये आइडिया देखो तब आया था जब अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी। बहुत सारी बातें कही उन्होंने, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप करो, क्लिनिकल स्किल्स डेवलप करो, ये स्किल डेवलप करो, वो स्किल डेवलप करो। व्हेन यू विल टीच एवरीबॉडी हु इज कमिंग अप हाउ टू अर्न, none of the course in this world, be it Oxford, be it Harvard, कोई भी हो, कितने सारे कोर्सेज हैं उनके पास, we don't teach anybody how to earn money. So today I'll be talking sense, I'll be talking right. So I'll just be sharing a few pointers, theoretical है, imply करना अपनी लाइफ में, ठीक है ना? अगर समझ में आए तो, बहुत जरूरी नहीं है समझना, नींद आए तो सो जाना, जगाऊंगा नहीं। प्लीज नेक्स्ट, जल्दी आगे तुम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ओके, चलो ये बात हो गई, ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट, हमारी बात हो गई। Now the first approach that I'll be talking about, think beyond. पक्षे में से बल्ब का आविष्कार भी thinking beyond, ठीक है ना? हर चीज, a different idea can change
योर लाइफ, एनीथिंग डिफरेंट आइडिया। मेरे लाइफ में इतने डिफरेंट आइडियाज मुझे मिले, इतने दुनिया भर में डिफरेंट आइडियाज मुझे मिले। फिजियोथेरेपी को मैं बाद में आपको पहले जनरल दुनिया से डिफरेंट आइडियाज निकालता हूँ। सबसे कमाल आइडिया मुझे लगा जब गूगल ने इंटरप्रिटेशन शुरू किए दूसरे। इतनी कमाल की चीजें गूगल ने डाल रखी है, इतनी कमाल की इन्वेंशंस किए हैं, इतने कमाल के नए एप्लीकेशंस जनरेट किए, सोच ही नहीं सकता यार ऐसा। मतलब एक बार जब मैं आज से 10 साल पहले मुझे कहीं जाना पड़ता था, मैं ऐसे बैठ करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था, अच्छा इस गली में से इस गली जाना है, इस गली से उस गली जाना है, फिर कागज पे मैप बनाता था, अच्छा इधर मुड़ना है, पहली गली नहीं तीसरी गली के बाद लेफ्ट टर्न। कितना आसान काम कर दिया, डाला मैंने जगह, गूगल मैप्स आ गए, लोकेशन व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप शेयर कर दिया। चलो और मुश्किल हो रही थी मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, मेरे सामने चीज पड़ी, मुझे नहीं पता क्या है। दुनिया में एक अपसाइड डाउन रेवोल्यूशन आया, गूगल लेंस डाल दिया उन्होंने, फोटो खींचा, फोटो खींचते उसकी सारी हिस्ट्री से ज्योग्राफी बता दी गूगल। दैट इज एन आइडिया दैट कैन चेंज योर लाइफ। इट कैन बी इन फिजियोथेरेपी। आई स्टार्टेड विद ऑनलाइन एजुकेशन, देयर वाज नो ऑनलाइन एजुकेशन इन फिजियोथेरेपी। सारी दुनिया भर ऑनलाइन एजुकेशन बात कर रही थी, सारी दुनिया कोविड के अंदर थी, कोई कहीं जा नहीं पा रहा था, नो ऑफलाइन एजुकेशन वाज देयर, सारी दुनिया घर बैठ के पढ़ रही थी, फिजियोथेरेपिस्ट जूझ रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने फ्री बांट दिया सब कुछ, आ जाओ, पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो बस योर राइट। ऐसा कि ऐसा बहुत सारी डोमेन्स जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, कितनी सारी, कभी किसी ने वेटरनरी फिजियोथेरेपी के बारे में सुना है? होती है, इट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड बट हार्डली पीपल नो अबाउट इट ना। हम क्यों नहीं जानते? इट इज एन आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच। अभी आज बात कर रहे थे हम लोग, सर से मैं बात कर रहा था कल, सर की टॉक भी है कल परसों इस चीज के बारे में। कितने हम लोग बहुत कॉमनली अर्गोनॉमिक सेशंस लेते हैं, कंपनीज में जाकर के लेते हैं करते हैं, कितने हमारे अर्गोनॉमिक बेस्ड सेंटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और कितनी पॉपुलेशन है जिसकी जरूरत है। पहले लोग कहते थे कि यार कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो तो ऐसे बैठ के करते हैं, जिन लोगों ने घर पे बैठ के काम करना शुरू किया उनकी हालत तो और खराब हो गई। सो दे नीड मोर अर्गोनॉमिक रिलेटेड अप्रोचेस हु आर डूइंग वर्क फ्रॉम, right? So we hardly have clinics or centers who are based virtual, who are based exactly on the ergonomic aid that we should give. Postural correction clinics नहीं है हमारे पास. We do have it in Jaipur recently established, सर ने शुरू किया है, right? So that is entirely based upon postural correction. So we should have more of such domains to be inculcated in physiotherapy. We don't have it, right? So that is what you can have to think beyond. So that idea, one idea can change your life, one idea can change the life of the individuals you are serving. एक रिकॉर्ड करेंगे। ये लाइन मुझे इतनी चुभ गई थी कि मुझे लिखनी बहुत जरूरी थी, मतलब मेरे दिमाग में आई थी कि यार हम क्या करते हैं, देयर आर टू टर्म्स, हम अच्छी पढ़ाई कराते हैं, अच्छे कोर्स करा रहे हैं, खूब डांटते हैं, क्यों कराते हैं? ताकि हमारे बच्चे की अच्छी नौकरी लग जाए, ठीक है ना? We train, we educate to become employed, but we never educate people to become an employee. So this is a paradigm which has to be shifted from an employee-based thinking to an employer-based thinking. यार मोदी जी की दूसरी सरकार आ गई है, वो बार-बार कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे इतना फोकस कर रहे हैं, वो उन्होंने रेडी चार्ट वाले तक के पास पेटीएम फोन पे के वो क्यूआर कोड लगा दिए। एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड इज नाउ इन इंडिया स्पेशली इज एमिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। व्हाई नॉट वी? व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर अफ्रेड ऑफ थिंग्स। हम डरते हैं चीजों से, ठीक है ना? क्योंकि हम डरते हैं तो हम एक स्टेप नहीं लेते। सो इसलिए हम आसान रास्ता चुनते हैं कि 4.5 साल की बीपीटी, 2 साल की एमपीटी के बाद हम जॉब करेंगे, और जॉब करके व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू, और वी आर जनरेटिंग बिजनेस फॉर समबडी एल्स। अब आप लोग सोचोगे कि यार तुम भी तो यही करते हो, तो बिल्कुल सही बात है। मैंने किसी चीज से शुरू किया था, मैं भी बहुत डरता था इन सब चीजों से, बट इट इज वन डे दैट यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, and the day you step out of your comfort zone, this employee-employer relationship will change. The employee which is there within you here will turn and get converted into employer. That is why we educate to seek employment, but we should educate people to generate employment. हमें employment create करना है, हमें employment seek नहीं करना है। This is what is the change I want. जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं आज, अगर मेरी बात समझ पा रहे हो ना, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ऐसे नींद को इधर कर दो, ऐसे करो, कुछ भी करो, काम कर लो, ठीक है ना? बस ये एक बार जोर से, या फिर थोड़ा सा थोड़ा बात कीजिए, आधा घंटा और इधर से चलो, प्लीज चेंज द साइलेंस. So how you can do it? One more strategy: keep believing in yourself.
जिस दिन खुद में बिलीव करना शुरू कर दिया, उस दिन से 360 डिग्री अपसाइड डाउन जिंदगी बदल जाएगी। जब तक हम आज एक अपनी कंफर्ट जोन को क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिस दिन मुझे पता चल गया कि मेरी पावर क्या है, भाई इंडियन माइथोलॉजी से पता लगता है। तो आज हनुमान जयंती है, तो हनुमान जी का एग्जाम्पल दे दूंगा। रामचंद्र जी ने उनको बताया था कितनी शक्तियां उसके बाद, उससे पहले तो उनको पता ही नहीं था कि वो 100 योजन पार कर जाते। उनको जिस दिन पता चला, he started believing in himself and then rest is रामायण। ठीक है ना। आई टेक मोर एग्जांपल फ्रॉम माइथोलॉजी। वहां पे महाराज लक्ष्मण जी का मैंने लेक्चर सुना, मैं इतना इंस्पायर हो गया उनसे। कमाल की बात कही उन्होंने। एंड आई बी नाउ इनकलकेटिंग फ्यू एग्जांपल्स लाइक दैट। ठीक है, प्लीज चेंज। सो ये लाइन मैं बता दूं मेरी नहीं है, ये सर की लाइन है जो मैं अभी बोलने वाला हूं। इन्होंने मुझे कहा, ये मुझे कई बार कहते हैं, इन्होंने मुझे कल की बात कही, you have to keep believing in yourself. Why? Because nobody else out of your world is your competition. It's only you. It's only you who are pulling yourself inside your comfort zone. It's only you who can push yourself out of your comfort zone. आप हो जो अपने आप को अपनी कंफर्ट जोन में खींच लेते हो, और आप ही वो इंसान हो जो अपने आप को धक्का दे करके अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लेते हो। और जिस दिन आप अपने आप को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लेते हो ना, उस दिन से वक्त बनना शुरू होता है। प्लीज चेंज। I'll be moving on to the same thing, one thing. ये believing in yourself के दो पैरामीटर्स मैंने डिस्कस किए और इतनी कमाल बातें कही है। पहली बात, don't afraid to fail यार। फेलियर मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि if you have not failed anywhere means you have not tried anything। अगर आपने कभी जिंदगी में फेल नहीं किया, आप गिरे नहीं हो ना, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ट्राई नहीं किया। डू ट्राई। मैं अपने स्टूडेंट्स का जो भी मुझसे सुन रहा है, मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूँ, यार ट्राई करो। कोई बात नहीं, फेल ही तो हो गए। फेल होना is a step till you reach your own destination. Try, fail, but every time you fail better than previous. But try hard. Don't skip trying. Don't skip failure. Failure don't repent your failure. Failure gives you experience. And I always say, मैं कई लोगों को कई जगह बोलता हूँ, failure is something that makes your character. Failure आपको इंसान बनाता है, एक ह्यूमिलिटी लाता है इंसान के अंदर, एक ग्रैटिट्यूड लाता है। आप इंसान से इंटरैक्ट करना सीखते हो, इंसान से बात करना सीखते हो when you fail. So I want everybody of you, it's not I'm just giving you a blessing, it's a blessing to fail, because failing or failure gives you learning. बहुत अच्छा लग रहा है, इससे बहुत ही मैं जैसे धर्म वाली बातें कर रहा हूँ बहुत मैं ना। So कई लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज्ञान बढ़ रहा है, आपने ना फालतू का ज्ञान बढ़ रहा है, हमको तो कुछ सिखा ही नहीं रहे। इसमें से एक पॉइंट पकड़ लेना, मैं आज 7-8-10 स्लाइड पढ़ूंगा, एक पॉइंट पकड़ लेना बस, सिर्फ एक पॉइंट, सिर्फ एक कुछ पकड़ करके मंथन करना, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा चर्न करना है, और उसको चर्न करने के बाद जो निकल के आएगा ना क्रक्स, वो क्रक्स अपनी लाइफ में डाल देना। फिर जो चीज आएगा तो 5 साल बाद मुझे बता देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट never forget the value of struggle. Again, the second point that makes you a human being, this makes you a strong character, that is struggle. फिर से माइथोलॉजी का एग्जांपल लूंगा। आप लोगों को पता है कमाल बात, रामायण से कमाल बात हमको मिलती है कि जब भगवान श्री राम वनवास के बाद अयोध्या वापस पहुंचे थे, तो पता है सबसे पहले वो माता कैकेयी से मिलने गए थे। क्यों? वो माता कैकेयी से मिलने गए, उसको बोला थैंक यू यू गेव मी दिस, आपने मुझे ये दिया। अगर आप मुझे नहीं देते तो मैं क्या होता, ज्यादा अयोध्या में राजा बन के रह जाता, मुझे 10,000 50,000 लोग जानते। आज आपने मुझे इतना दूर भेजा, इतने सारे स्ट्रगल करवाए, मैं वानर सेना से मिला, बाली को मारा, मैंने रावण को मारा, इतने सारे लोगों को मार दिया, नाउ आई एम अ ग्लोबल स्टार, आई एम अ पर्सन जिसको दुनिया जानती है। मैंने स्ट्रगल फेस किए और मैं आम राजा से भगवान हो गया। दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ स्ट्रगल। स्ट्रगल कैन चेंज योर कैरेक्टर, struggle can make you strong character. So never be afraid of struggle. Invite struggles in your life, right? Change please. Take on. So another strategy, how do you work it into the physiotherapy perspective? भाई मैं स्ट्रगल से मैंने वो तो दे दिया, मैं स्ट्रगल का एक और एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा खासा। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और हम क्या करते हैं, जब हम इनिशियली बड़ी फेज होता है हमारे पास, पेशेंट ठीक नहीं होता है, हम बहुत कोशिश करते हैं उसके ऊपर, फिर हम छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, कहते हैं पेशेंट साइको है, पेशेंट तो ठीक ही नहीं है ना। Only hardly 5 to 6%, even lesser percentage of this are a psychiatric or what you can say, very psychologically impacted patient बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। It is us
who are unable to treat them, who are unable to diagnose and assist them. This is what is the difference that makes struggle with the patient, struggle with the condition. Always it is important to have knowledge acquisition. Knowledge acquisition बहुत important चीज होती है, acquisition करो, लेकिन try to communicate with the patient. मैंने एक बहुत important point है आज की पूरी presentation में नहीं दिया हुआ है communication, क्योंकि अगर मैं communication ले लेता तो शायद आज का दिन मैं पूरा बोलते हुए निकाल देता communication, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लिया. I just want to stop myself from speaking on that, right? So struggle with the patient, struggle with the condition, try to learn new things. Go home, try to see new journals, try to see new evidences, try to see new researches which are inculcating in the whole physiotherapy fraternity. हम नहीं करते इस साल. हम क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं, मतलब 9 से 5 बजे तक यहाँ पे क्लिनिक पे देख लिया, पेशेंट विजिट्स कर ली, बहुत सारे काम कर ली, कंसीडर दैट स्ट्रगल. नो, दैट्स नॉट स्ट्रगल. स्ट्रगल इज विद इन यू. आपने कितना ब्रेनस्टॉर्म किया एक चीज को जहाँ पे रुक गए थे आप एक केस पे रुक गए थे, आपने उस पे कितना ब्रेनस्टॉर्म किया दैट्स योर स्ट्रगल, राइट? So how do you move it into the market? Evaluate the market. सबसे important बात होती है कि आप ये देखो कि मार्केट है क्या, कौन है आपका मार्केट, क्या एरिया है जहां पे आप वर्कआउट कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज दवाई कौन एक्सट्रैक्ट द नीड ऑफ द मार्केट. क्या है आजकल पता है बहुत ही कमाल नीड चल रही है मार्केट में, जो कि हर आदमी मुझे कई बार मुझे फोन आते हैं लोगों के एंड दे कॉल आर यू कायरोप्रैक्टिक एक्सपर्ट, आर यू ऑस्टियोपैथ. आई सेड नो, आई एम अ फिजिशियन. राइट, सो इट इज दैट आर यू, मतलब आजकल पता है मार्केट में ये दो टर्म्स बहुत चल रहे हैं और बहुत सारे चल रहे हैं. मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. सो इफ यू आर लर्नेड इनफ टू प्रैक्टिस chiropractics and your osteopathy, you serve people with that. But if you are not, do not try to enter these domains, but do not leave your own domains as well. If you can treat a particular condition with your own conventional physiotherapy, do try to treat it with your own physiotherapy. Try to take and extract the need of the marketing. दुनिया क्या चाह रही है आपसे? Do they want a good, what you can say, modality based clinic? उनको बहुत अच्छी machines चाहिए जो कि advanced technology की हो, US based machines हो. क्या उनको वो चाहिए? Are you able to give them? Or you are not able to give them? If you are able to give them, they will come to you. Right? So you have to extract the need of the market wherever you are standing in the need of the market. One more click please. And then try to target and cater the need of the market. Assess yourself, evaluate yourself और अब देखो कि आप मार्केट में कहाँ खड़े हैं. क्या आप जनता की नीड को cater कर पा रहे हो? Are you able to cater them? Are you able to give them what they need? If you are not able to give them what they need, then refurbish yourself. अपने आप के अंदर बदलाव लाइए थोड़ा सा, ठीक है ना? अब आप अपने आप को बदलाव करेंगे, अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, you will run up to a different level, and then you will be able to cater the need of. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इसके बाद सभी लोग अपने अपने सेंटर्स को लेंगे, अपने अपने क्लिनिक्स को लेंगे, अपने अपने हॉस्पिटल्स को लेंगे. जस्ट वरना 2-4 चलिए. सो इसका सबसे अच्छा तरीका है R&D. इसकी मैं बात हर जगह कहना कि करी देता हूं, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इट कैन बी डन बाय ऑफलाइन मेजर्स, ऑनलाइन मेजर्स. एक क्लिक और कर दो जल्दी से. ऑफलाइन मेजर्स जो है उसमें आप बहुत ज्यादा जनता को केटर नहीं कर सकते, एक एक आदमी से मिलोगे और फिर उनके फीडबैक्स लोगे. ऑनलाइन एक बहुत अच्छा तरीका है, सोशल मीडिया, गूगल, ये बहुत अच्छे तरीके हैं. यू कैन टेक फीडबैक्स एंड यू कैन एक्सट्रैक्ट कि क्या नीड है मार्केट में, राइट? प्लीज चेंज जल्दी. अरे इतना जल्दी लास्ट चीज है, इसके बाद नहीं होगा. So the last thing that you have to work up on your own brand building. ठीक है? Brand दो तरीके की होती है, या तो you can make yourself as a brand or you can make your enterprise as a brand. जब आप अपने आप को brand बनाते हैं तो you have to be available every time. If you are making your enterprise as a brand, you don't have to be available every time. So ऐसा वॉरेन बफे की एक लाइन है कि if you are an entrepreneur, your enterprise should run and money should circulate even while you are sleeping. So that is how your enterprise becomes a brand. Please एक change कर दो, समय निकल रहा है इसलिए मैं बार-बार ज़्यादा नहीं करता. Last slide. Characteristics of brand. फटाफट तीन बताओ. Brand perception, brand value, and brand promise. Brand perception comes out of marketing. और कुछ नहीं होगा, एक लाइन बोलूँगा, एक phrase है, 2 शब्द बोलूँगा, आगे के शब्द आप बोलोगे. वो सुना हुआ है आप सब लोगों ने. टीवी में कई सालों पहले से हम सुन रहे थे. ठंडा मतलब? This is one idea, one marketing gimmick. हमारे यहाँ पे ना एक बंदा काम करता था, ये इतना लोगों की ज़बान पे चढ़ गया था 90s में, तो उसके ना दादाजी एक्सपायर हो गए. He wanted to go on to leave. Brother asked what happened? तो he said कि दादाजी कल सोए थे शाम को सब कुछ बढ़िया, सुबह उठे तो कोका-कोला. Right? So this one marketing gimmick. There are a lot of marketing gimmicks which can change your life.
अमेजिंग नीड ऑफ द मार्केट एंड उसके साथ साथ ब्रांड इनकर्नेशन में बहुत अच्छे एग्जांपल्स दे सकता हूं, सच स्विगी। मैं घर पे बैठा हूं, मैं कोविड में था, मैं जा नहीं सकता, मैं खाना नहीं बनाने की इच्छा नहीं हो रही मेरी, क्या करूंगा? खाना घर पे लेकर के आऊंगा, राइट? स्विगी हुआ, जोमेटो, दे आर केटरिंग द नीड्स ऑफ द मार्केट, right? So this is how you have to cater the need, extract out the needs के फिजियोथेरेपी में इंसान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। लास्ट वन प्लीज आगे बढ़ा दो, ज्यादा समय नहीं होगा। One last line, don't build business, build people and they get and build business for you, right? One last thing, change this slide, this is where I do work, although I work for lot many places but this is the enterprise I have built। इसके बाद मैं अक्सर क्या करता था, लोगों को लिखता था कि follow me on this social media, no, आज नहीं कहूँगा, आज उल्टा बोलूँगा, don't follow me, follow yourself, take out one week